Hello students, today topic is a communication media or transmission media. Okay, both are the same things. Communication media is also known as transmission media. So what is a communication media? Communication media या फिर transmission media is used in networking through which data and information is transferred from one side to another, that is from sender to receiver or receiver to sender. Okay, through this communication media, data is represented by computers and other telecommunication device using the signals. Okay, signals are transmitted in the form of electromagnetic energy from one device to another device, or these electromagnetic signals travel through vacuum, air and other communication medium which travel between one point to another. That means source to receiver. Okay, so there is a two types of communication media used, that is a wired and wireless. That means both wired and wireless mechanisms are used for sending the data. Okay, so communication media use two types of media. That first is a wired, is also known as guided transmission media, and second is a wireless, is also known as unguided transmission media. Wired transmission media, under the wired transmission media, the example of twisted pair cables, coaxial cables, optical cables, Ethernet cable. So communication media, the data transferred through a signal. Okay, डेटा किसके थ्रू जा रहा है? सिग्नल्स के थ्रू, एंड दैट सिग्नल्स इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू vacuums, air and other communication media. Vacuum and air, that means is transmitted through wireless communication media, but communication media through travel, that is a used some physical cables, there are some physical wire, that means some wired, for example twisted pair cable, कोइजल केबल, ऑप्टिकल केबल, इथरनेट केबल. तो ये क्या यूज़ कर रहे हैं? केबल्स का यूज़ कर, तो उसके थ्रू सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहा है. कम्युनिकेशन मीडिया किसके थ्रू हो रही है? एक केबल्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है. जबकि वायरलेस विदाउट वायर्ड है, अनगाइडेड मीडिया है, कोई गाइडेड नहीं है, कोई ट्रांसमिशन मीडिया में गाइडेंस नहीं दी गई है. तो इसमें आपका सिग्नल्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? थ्रू द एयर एंड वैक्यूम. ओके, सो दैट आर ए communication media and transmission media. So what is a wired transmission media? Wired transmission media is also known as guided transmission media. That means is also, you can say that is also known as bounded transmission media, where because there is some boundation. Okay, so that is also known as bounded transmission media. It is the transmission media in which signals are confined to a specific path using the wires or cables. Okay, in this type of media, the electromagnetic signals travel between the communication device through a physical media, physical conductor. Okay, as a media for transmission is physical conductor, it also provide direction, that is the wire. So this wire is connect to this, to both sides. ठीक है, that means signal travels through this direction. Okay, so as a media for transmission physical conductor, it also provide direction to the signal. And guided transmedia is further categorized into four categories, that are twisted pair cable, coaxial cable, optical fiber cables and Ethernet cables. Okay, and what is a wireless? वायरलेस या अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया. वायरलेस या अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में, दैट मीन्स यू यूज it does not require any physical media to transmit electromagnetic signals. It's in unguided media. In unguided transmission media, the electro signals are broadcast through air to everyone. सैटेलाइट के थ्रू, एयर के थ्रू क्या हो रही है? हर लोगों के पास पहुंच रहा है सिग्नल्स. ठीक है, these signals are available to one who has the device capable receiving those signals. Or unguided media is also known as unbounded media, because there is no any border limitation. Okay,
The unguided transmission media allows the user to connect all the time as the communication is wireless. The user can connect from anywhere to the network. Okay. मोबाइल में आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, कौन सा मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया. ओके. अब टीवी आपकी कैसे चल रही है, टीवी आपकी किसके थ्रू चल रही है, वायर के थ्रू चल रही है. तो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन मीडिया. कौन सा है आपका, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, क्योंकि इसमें हम केबल का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. ठीक. और जबकि मोबाइल है ये क्या है हमारा, वायरलेस है. कॉर्डलेस क्या है, वायरलेस है. वॉकी टॉकी क्या है, वायरलेस है. इसमें सिग्नल आपका कैसे मिल रहा है, विदाउट वायर. ओके. तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अ ट्विस्टेड पेयर केबल. Twisted pair cable, there are two types of twisted pair cable, unshielded twisted pair cable and shielded twisted pair cable. So first of all, what is a twisted pair cable? This is most commonly used and least expensive cable. Okay, बहुत ही least expensive मतलब बहुत कम कॉस्टली होती है, आपको easily अवेलेबल हो जाती है twisted pair cable. और ये used in LAN में यूज़ होती है. It is lightweight, इंस्टॉल ईजली एंड सपोर्ट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क. जैसे आपका लैन में भी यूज़ होता है, मैन में भी यूज़ होता है. ठीक है. लेकिन लैन में जहाँ पर आप नॉर्मली नेटवर्किंग करते हो, फिर लोकली नेटवर्किंग अगर करेंगे तो वहाँ पर हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करेंगे. ठीक है. ट्विस्टेड से नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को ट्विस्ट किया गया है, मोड़ा गया है. ठीक है. दो चीज़ों को क्या किया गया, देखिए यहाँ पर ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बनाया है. आप लोगों को कल हम फ़ोटो भी क्लिक करके भेज देंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, तब हम ऑडियो के थ्रू आपको बता देंगे. इसमें एक केबल है तो उसमें दो वायर, आपने देखा होगा घर पे कभी कभी वायर रहती है जिसमें रेड ग्रीन और ऐसे आपस में ऐसे ट्विस्ट रहती है. तो वो आपकी जो केबल है उसी में कई ढेर सारी रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन और वाइट और ग्रीन वाइट और रेड वाइट इस तरीके से आपस में क्या रहती है, ट्विस्ट रहती है. ठीक है. तो वो जो केबल्स होती है वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है. अब इसमें एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मीडिया. इज कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटिंग कॉपर वायर. ठीक है. टू इंसुलेटिंग कॉपर वायर का यूज़ होता है जो कि 1 mm थिक होता है. द वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इन अ हेलिकल फॉर्म to reduce the electrical interference from similar pair. electrical interference that means कि जैसे ये reduce करता है electrical interference की, जैसे अगर दो केबल के बीच में हमारे आप कह सकते हो एक तरीके से जो शॉर्ट सर्किट टाइप का हो जाता है कि अगर दो आपस में वायर कनेक्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकली आपस में दो इलेक्ट्रिकल मिल जाएंगे. ठीक है. तो वो जो इससे ये आपस में ट्विस्ट रहते हैं तो हेलिकल फॉर्म में ट्विस्ट रहते हैं तो इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. दो सिमिलर पेयर में. यूटीपी केबल्स या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट 2 और 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल. तो दो केबल को भी हम ट्विस्ट कर सकते हैं और चार केबल का भी पेयर बनाकर ट्विस्ट कर सकते हैं. ठीक है. जब केबल्स विथ टू पेयर यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं RJ कनेक्टर का. किसका, RJ11 कनेक्टर का. ठीक है. अगर हमने दो वायर को दो पेयर ट्विस्ट करे हैं तब हम यूज़ करेंगे RJ11 कनेक्टर का. और अगर हम 4 पेयर को ट्विस्ट कर रहे हैं, 4 पेयर वायर को ट्विस्ट कर रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे RJ45 कनेक्टर का. ठीक है. RJ45 कनेक्टर का. दो पेयर ट्विस्ट करेंगे तब यूज़ करेंगे RJ11 कनेक्टर. एंड व्हेन यूज अ 4 पेयर then use a 4 pair use a RJ45 connector. Okay. UTP are usually used in LAN technology. LAN technology में यूज़ होती है लाइक इथरनेट, जैसे हम इथरनेट का यूज़ करते हैं. देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. फर्स्ट एडवांटेज है ये इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड फ्लेक्सिबल. थर्ड है इट इज़ हाई स्पीड कैपेसिटी अप्रॉक्स अप टू 100 मीटर लिमिट. 100 मीटर तक ये हम इसकी नेटवर्किंग कर सकते हैं, इसको नेटवर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज़ ए लो बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू द कोएक्सियल केबल. जो कोएक्सियल केबल है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है जबकि आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल की बैंडविड्थ कम होती है. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बैंडविड्थ मतलब कि जैसे ये आपका एक
रोड है, अब इस रोड से आने का रास्ता इधर से है, जाने का रास्ता इधर से। अब रोड बहुत पतली है, इसकी बैंडविड्थ बहुत कम है, तो अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आने और जाने में प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि स्पेस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बैंडविड्थ बढ़ा दें, रोड और चौड़ी कर दें, 4 लेन रोड कर दें, तो और इधर हाफ साइड में हम आने का और इधर हाफ साइड में जाने का, तो इससे बैंडविड्थ अगर बड़ी रहेगी तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा भी होगा तो उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो उसी तरीके से यूटीपी आपका जो है इसमें बैंडविड्थ कम होती है वायर की, ठीक है। इसमें बैंडविड्थ कम होने की वजह से अगर सिग्नल्स एक साथ ज़्यादा जाता है तो वहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ठीक है। सिग्नल्स प्रॉब्लम कायदे से नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर कोएक्सियल केबल में उसकी बैंडविड्थ हाई रहती है कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर केबल, तो आपकी इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। तो यही एक इसका डिसएडवांटेज है। और इट प्रोवाइड्स लेस प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटरफेरेंस, और ये लेस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अदर केबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब है ट्विस्ट हो रही है लेकिन उसके ऊपर कोई भी शील्डिंग नहीं है, ठीक है, अनशील्डेड है। अब यहीं पर जब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की केबल की बात होती है तो इसके ऊपर यहाँ पर आपका जो नंगा जैसे वायर एक तरीके से विदाउट उसके ऊपर कोई शील्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मेटल फॉयल का हम एक कवर चढ़ा देते हैं, ठीक है, सभी इंसुलेटर के ऊपर, ठीक। विच केसेस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस जो पेनिट्रेट्स करती है वो उससे हम ये मेटल क्या करता है, हमको सेव करता है। जैसे अगर हम बाहर बैठे हुए हैं, अगर हम घर के बाहर बैठे हुए हैं तो आसपास की जो आवाज़ें होंगी वो हमको सुनाई देंगी, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान भटकेगा, ठीक। उसी तरीके से हम एक अपने कमरे के अंदर चले जाएं, वहाँ पर अपने आप को कवर कर लें, शील्ड कर लें, तो आसपास से जो आवाज़ें आएंगी वो हमारे तक पहुंच नहीं पाएंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि केबल में जब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल था तो उसमें जो अलग से बाहरी से अगर कोई भी वायर से कनेक्ट हो जाता था, ठीक है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस था वो वहाँ तक पहुँच जाता था, ठीक है, जो कि हमें क्या करता था, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जैसे फ़ोन पे जब हम बात करते हैं लैंड नेटवर्किंग के थ्रू या फिर बात कर रहे हैं तो बीच बीच में किसी और की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक, क्योंकि वो हमारा क्या है, किसी तरीके से शील्डेड नहीं है। लेकिन अगर हमने उसको इसमें शील्डेड में मेटल फॉयल से हमने उसको शील्ड कर दिया, शील्ड करने पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की नॉइज़ होगी वो हमारी प्रिवेंट हो जाएगी उस मेटल केसिंग के अंदर, तो वो कहीं और बाहर नहीं जाएगी आवाज़ उसकी, ठीक है। तो दैट इज़ अ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और इट इज़ फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसमें मेटल फॉयल लगा दिया है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इट कैन बी यूज फॉर एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, दोनों के लिए यूज होता है, एनालॉग में भी और डिजिटल में। एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन। एनालॉग क्या होता है, देखिए एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन, एनालॉग में जो आपका सिग्नल प्रोवाइड होता है वो ऐसे होगा, ठीक है, विदाउट स्टॉप, मतलब कॉन्टीन्यूअस वे में सिग्नल प्रोवाइड होता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन स्टॉप नहीं होगा। और डिजिटल में क्या होगा, देखो ऐसे, इस फॉर्म में जब सिग्नल प्रोवाइड होगा तो दैट इज़ अ डिजिटल सिग्नल। जब ये ऐसे है तो ज़ीरो है, मतलब सिग्नल नहीं प्रोवाइड हो रहा है। जब 1 है तो सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है। ये फिर ऐसे फ्लैट हो गया, 0 है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये 1 है, ये वाला 1 है, ठीक है, फिर ये नीचे 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है आपका, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है, ठीक। तो जब 0 है तो सिग्नल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें डिसकॉन्टीन्यूअस है, एक बार हो रहा है एक बार नहीं। तो जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल ट्रांसमिशन यूज़ करता है, और जो टेलीफोन अगर कहा जाए तो वो हमारा एनालॉग ट्रांसमिशन यूज़ होता है, इसीलिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। तो मॉडेम क्या करता है, मॉडेम हमारे टेलीफोन से हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, ठीक है, तभी तो हम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। तो दोनों का सिग्नल्स अलग है,
एनालॉग अलग है, डिजिटल अलग है, ठीक। तो मॉडेम क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र करेगा। इसी इसका नाम है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होता है वो एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन दोनों में भी यूज़ होता है। कंप्यूटर वाली ट्रांसमिशन में भी यूज़ हो सकता है और मोबाइल वो टेलीफोन वाली जो हमारे लैंडलाइन फ़ोन होते हैं तो उसके ट्रांसमिशन में भी यूज़ हो सकता है। इट इज़ हायर कैपेसिटी देन द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इट एलिमिनेट्स द क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक मतलब वही जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में दूसरी भी आवाज़ आ रही है, तो वो इस प्रॉब्लम को रिमूव करता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर, हैवी इन वेट एंड इट इज़ एक्सपेंसिव, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कोएक्सियल केबल एक्सप्लेन करेंगे।